नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदम् औषधं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુદેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 13 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. બીજા અધિકારની ગાથા 13 અને સળંગ ગાથા 139 નો સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે. હવે આજે આગળ બીજા અધિકારની ગાથા 14મી સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. 14મી ગાથાના उपोद्घातમાં કહે છે कि आगे भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार व परंपरा मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं. गाथा 14 यद ब्रूते व्यवहारनयो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम तत्परिजानी ही जीव त्वं येन परः भवसि पवित्र. 14મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે જીવ વ્યવહારનય યત દર્શનમ જ્ઞાનમ ચારિત્રમ બ્રૂતે. हे जीव व्यवहारनय जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है तत्त्वं परिजानी ही येन परः पवित्र भवसि. उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान जिससे कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र होवे. गुजराती में गाथा लिए. गाथा 14 भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे छे एवो उपोद्घातनो कर्यो छे. जे व्यवहार ने कह्या दर्शन ज्ञान चरित्र ते जीव जाण तू जेहथी थाय परम पवित्र. एना अर्थमां कहे छे हे जीव व्यवहार ने जे ज्ञान दर्शन चारित्र ने कहे छे तेने तू व्यवहार रत्नत्रय जाण कि जेथी तू परम पवित्र परमात्मा थाय. अने एनो विस्तार करता कहे छे कि हे जीव तत्वार्थनी सम्यक श्रद्धा शास्त्रोनुं ज्ञान अने अशुभ क्रियाओना त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ए व्यवहार मोक्ष मार्ग ने तू जाण. શું કહે છે કે હે જીવ તત્વાર્થની સમ્યક શ્રદ્ધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને અશુભ ક્રિયાઓના ત્યાગ રૂપ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગને તું જાણ. કારણ કે એ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનો સાધક છે. પોતાના શુદ્ધ આત્માની सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है. निश्चय मोक्ष मार्ग तो आ रीते ज पोताना आत्मानी सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान अने तेमां रमणता अथवा तो एम कहीए के एवा अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है. अने एवो निश्चय मोक्ष मार्ग है तो एनो साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग अहींया कहेवामां आव्यो छे. અને એ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ છે તેને સાધ્ય કહ્યું અને એનો સાધક અહીંયા વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે કહે છે કે
નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ સાધ્ય છે અને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ સાધક છે. અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ તો નિર્વિકલ્પ છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ નિર્વિકલ્પ છે, તેથી તે સમયે કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. સવિકલ્પ મોક્ષ માર્ગ ન હોય તો પછી વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ જે સવિકલ્પ છે એ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનો સાધક સી રીતે થાય? બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ નિર્વિકલ્પ છે એટલે કે રત્નત્રયના પરિણામ જ્યારે થાય છે, નિશ્ચય રત્નત્રય સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રના પરિણામ જ્યારે થાય છે ત્યારે તો કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. એ તો નિર્વિકલ્પ દશામાં પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરતા થાય છે, એટલે એ સમયે તો વિકલ્પ છે જ નહીં. તો જે અહીંયા વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ જે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનો સાધક કહેવામાં આવ્યો, જેમાં એમ કહ્યું કે તત્વાર્થની સમ્યક શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને અશુભ ક્રિયાઓના ત્યાગ રૂપ જે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવ્યો એ તો સવિકલ્પ છે. તો એ જ્યારે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ નિર્વિકલ્પ છે તો તે સમયે સવિકલ્પ મોક્ષ માર્ગ ન હોય તો પછી વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનો સાધક સી રીતે હોઈ શકે? અને પછી આચાર્યશ્રી એનું સમાધાન કરે છે અને એમાં એમ કહે છે કે આ જીવ અનાદિકાળથી વિષય કસાયોથી મલિન થઈ રહ્યો છે. વ્યવહાર સાધન વિના તે નિર્મળ થઈ શકતો નથી. જ્યારે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, કસાય આદિની ક્ષીણતા થવાથી આત્મા સદદેવ, સદગુરુ તથા સદધર્મની શ્રદ્ધા કરે, તત્વોને યથાર્થ જાણે, અશુભ ક્રિયાને ટાળે, ત્યારે અધ્યાત્મનો અધિકારી થાય છે. એટલે ત્યારે એ ખરેખર તો અધ્યાત્મ પામવા માટે પાત્ર થાય છે. જેમ મલિન વસ્ત્રને સાફ કરવાથી તે રંગવા યોગ્ય થાય છે. જો મેલું વસ્ત્ર હોય અને એને રંગ ચડાવવો હોય તો આપણે પહેલા તો એને ધોઈને સાફ કરીએ, તો જ એની પર બીજો રંગ ચડી શકે, એનો રંગ બદલી શકાય. મલિન વસ્ત્રને સાફ કરી અને પછી એની પર નવો રંગ ચડાવાય છે. એવી રીતે આ અનાદિથી મિથ્યા દ્રષ્ટિ એ અજ્ઞાન અને કસાય ભાવ સહિત વર્તી રહ્યો છે, તો એને મંદ કસાય થવું, સાચા દેવ ગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરવી, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, તત્વને જેમ છે તેમ જાણવું, અશુભ ક્રિયા અને એવા વિકલ્પો ને ટાળવા, આ બધું કરે ત્યારે તો એ અધ્યાત્મને પામવા માટે અધિકારી થાય છે. એટલે કેટલું સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેમ મલિન વસ્ત્રને સાફ કરવાથી તે રંગવા યોગ્ય થાય છે, તેમ વિષય કસાય આદિના ત્યાગરૂપ વ્યવહારથી નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગને યોગ્ય થાય છે. અને પછી આગળ વાત કરી છે મોક્ષ માર્ગ બે પ્રકારના છે. એક વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ, બીજો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ. નિશ્ચય સાક્ષાત મોક્ષ માર્ગ છે અને વ્યવહાર પરંપરાએ મોક્ષ માર્ગ છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ પણ સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પના ભેદથી બે પ્રકારે છે. હું અનંત જ્ઞાનરૂપ છું ઇત્યાદિ સવિકલ્પ મોક્ષ માર્ગ સાધક છે, તથા જ્યાં કંઈ ચિંતવન નથી, બોલવા પણ નથી, બીજી કોઈ ચેષ્ટા નથી, તે નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ એ સાધ્ય મોક્ષ માર્ગ છે. અને એ વિશે પછી બીજી ગાથાનું પ્રમાણ આપી અને વિસ્તાર કર્યો છે કે એ પણ કહે છે કે સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ મોક્ષ માર્ગના સંબંધમાં તત્વસારમાં આ ગાથા આપી છે. જમ પુણ સગયમ તચ્ચમ સવિયપમ હોયિત અવિયપમ સવિયપમ શાસ્વયમ નિરાસમ વિગ સંકલ્પ. એટલે કે
આત્મતત્વ સ્વવિકલ્પ નિર્વિકલ્પના ભેદથી બે પ્રકારનું છે. તેમાં સ્વવિકલ્પ આશ્રવ સહિત છે અને નિર્વિકલ્પ આશ્રવ રહિત છે. તો એ બધો વિસ્તાર આપણે આગળ પર પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી સમજીશું. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, ઘણા દિવસ સુધી વિસ્તાર કર્યો છે. તો એ બધું આપણે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ ચોથો વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 163, ગાથા 14 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવનું પ્રવચન. આગે ભેદ રત્ન વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષમાં હવે અહીં વ્યવહાર બતાવે છે. પરંપરા અર્થ એનાથી રહિત થાય. આ વર્ગ્ય છે ને બધા ઘણા. એ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ નિશ્ચય છે, એને આ વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષનું કારણનો આરોપ આપવામાં આવે છે. રાગ છે એ તો આશ્રવ છે, એ કેશે અંદર. નિશ્ચય અને વ્યવહારના પાસ બે ભેદ પાડશે, અંદર નિશ્ચયના બે ભેદ પાડશે. નિર્વિકલ્પ અંદર સ્વરૂપથી નિશ્ચય છે અને વિકલ્પથી વિચાર કરે છે એ પણ નિશ્ચય છે, પણ વિકલ્પ છે તે આશ્રવ છે. પાનું લખ્યું છે ને સીધી આ પાનું લખ્યું છે, એ 14મી ગાથાનું ગુજરાતી કરેલું છે. વેદ રત્નાક્ષર વ્યવહાર પરંપરા એટલે જે ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્ય નિશ્ચય દૃષ્ટિ, નિશ્ચય જ્ઞાન, નિશ્ચય રમણતા, એને જે વ્યવહાર હોય એની વાત છે. એકલા અજ્ઞાનીના વ્યવહાર પરંપરા એને હોય નહીં. સમજાણું કાંઈ? કેમ કે નિશ્ચય છે જ્યાં આત્માની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને રમણતા, ત્યાં પૂર્ણતા ન હોય એને આ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી. દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર જ્ઞાન, ભક્તિ, જાત્રા એવો ભાવ આવે, પણ એ રાગ છે. એનું જ્ઞાન નિમિત્તથી કરાયું છે. મોક્ષ માર્ગમાં કહ્યું ને, વ્યવહાર રત્નત્રય મોક્ષ માર્ગ નથી, પણ નિમિત્ત આદિની અપેક્ષાએ તેના આરોપ કરીને કથન કર્યું છે. મોક્ષ માર્ગમાં છે, રોડનમાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે, એ મોક્ષ માર્ગ છે નહીં. પણ આરોપથી નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા, શુદ્ધ ચૈતન્યની શ્રદ્ધા જ્ઞાનને રમણતામાં અપૂર્ણતાને લઈને એ રાગ અંદર હોય છે. વ્યવહાર એ રાગને મોક્ષ માર્ગ કયો છે એ નિરૂપણ કથનની અપેક્ષા છે, વાસ્તવિક એ છે નહીં. એ ટોડરમલ 7મા અધ્યાયમાં એ જેથી વાંચું છું બાશીની સાલમાં, બાશીઓ આવી વાત ક્યાંય છે નહીં. વસ્તુથી રાજકોટમાં બાશી પછી કેટલા વર્ષ થયા? 50 વર્ષ પહેલાની વાત છે. જંગ બોલઈ વ્યવહાર નો ભાષા જો ને, જંગ બોલઈ કે છે, કથન કરે છે એમ શબ્દ છે, નિરૂપણ છે એમ શબ્દ છે. જંગ બોલઈ વ્યવહાર
નવો દંસણું નાનું ચરિતું તંગ પરિયાણ ઈ એને જાણ એમ કે છો. પાઠમાં તો એમ કે છે જાણ. જેને અંતર આત્મામાં શુદ્ધ ચૈતન ભગવાનની અંતરદ્રષ્ટિ જ્ઞાનને રમણતા એને હજી રાગ બાકી છે. વ્યવહાર એને બોલી એનું નિરૂપણ છે કે વ્યવહાર રત્નતય છે. ભાષા જુઓ ને. બોલઈ વ્યવહાર નવું દંસણું નાનું ચરિતું તંગ પરિણામ તંગ પરિયાણ એને જાણ. નિશ્ચય વાળાને વ્યવહાર આવે છે એને તું જાણ. તું જે પરું હોય પવિત્ર અને એનાથી તારી પવિત્રતા પૂર્ણ પછી થશે. એ જીવ છે व्यवहार नहीं जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को कहता है देखो मूर्ति बोले ये तो कहते हैं उस व्यवहार तंत्र को तुम जान. જ્ઞાન કરના પડે. જ્ઞાન તો આવે ને વ્યવહાર આવે છે ને વચમાં પૂર્ણ વિતરાગ ન થાય ત્યાં સુધી નિશ્ચયના ભાનવાળાને પણ આ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહીં. દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ પૂજા એવો ભાવ આવે એ પુણ્ય ભાવ છે. એને વ્યવહાર નહીંથી મોક્ષ માર્ગનું આરોપથી કથન કરીને આવે છે. હા સમજાણું કાંઈ. तुम व्यवहार नहीं को जान जिससे कि उत्कृष्ट पवित्र होवे. પછી જ્ઞાન જ્ઞાન આ વ્યવહાર છે એમ જાણીને વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એની સંધિ કરી છે. નિશ્ચય अपना આત્મા એનું દર્શન જ્ઞાનની ચારિત્રની ભૂમિકામાં વ્યવહાર હોય છે. જાણેલો પ્રયોજન એટલે પર્યાણે કીધું છે ત્રીજા પદમાં. જાણવું અને જાણવાથી તને એના છોડીને મુક્તિ પરંપરા થશે. સમજાણું કાંઈ. હા ભાવાર્થ जिससे कि उत्कृष्ट पवित्र હોય. ભાષા તો વ્યવહાર નહીં નું કથન છે ને. વ્યવહારને જાણ जिससे कि उत्कृष्ट એટલે પૂર્ણ દશા તને પ્રાપ્ત થશે. એ વ્યવહાર નહીં નું કથન નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવે છે. એવો વ્યવહાર હોય છે નિમિત્તપણે હોય છે પણ એનાથી પરંપરા એટલે એને છોડીને થશે તેથી પરંપરા કહેવામાં આવ્યું છે. એ જીવ તું તત્વાર સિદ્ધાંત આ વ્યવહારની વાત છો. પહેલા આવી હતી તત્વાર સિદ્ધાંતની નીચેની વાત આવી હતી. तत्वार सिद्धांत के अपेक्षा चंचल रही रुचि रूप नीचे समय दर्शन 13 यहाँ तत्वार सिद्धांत व्यवहार विकल्प है. राग शास्त्र का ज्ञान ये विकल्प है राग और अशुभ क्रियाओं का त्याग त्या है शुभ भाव शुभ पुण्य भाव. अशुभ नो त्याग અને પુણ્ય ભાવ એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચાહિત વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કો જાન. એને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ જાન નિરૂપણની અપેક્ષા એને કહેવામાં આવ્યું છે. હા મોક્ષ માર્ગ બે નથી. મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ કથન બે પ્રકારે છે. મોક્ષ માર્ગમાં આવ્યું છે બધું.
ટોડરમલમાં એ ખુલાસો આપે એનું નિરૂપણ એટલે મૂલે કીધું ને કથન છે. હા હા હવે આમાં બધા વાંધા ઉઠ્યા છે ઝઘડા. એ બધું ટોડરમલનું માને નહીં ભાઈ. એને આ તો શાસ્ત્રનો ખુલાસો કર્યો. ટોડરમલે તો શાસ્ત્રમાં જે વાત સંક્ષેપપણે સામાન્યપણે હતી એને ખુલીને સ્પષ્ટ કર્યું છે. હે હા એ બાત હે, ઘરની વાત છે ને એની. પણ હવે શું થાય થાય એને ઉડાવી દીધા ખોટા સરેગા. ટોડરમલ ને બનાસદાસ અધ્યાત્મની ભાંગ પીને નાચ્યા છે. મારે એમ કીધું પ્રભુ પ્રભુ તને શોભે નહીં ભાઈ. જૈન દર્શનમાં ભગવાન આવું ક્યાંથી કહ્યું પ્રભુ તને. હા क्योंकि निश्चय रतन रूप नित्य मौके साधक व्यवहार साधक कहने में आता है. साधक भी उपचार से कथन है. निमित्त નું જ્ઞાન કરાવવા નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ને વ્યવહાર સાધક એ નિરૂપણ कथन उपचार से कथन करने में आया है. हाँ શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં મોટો ફેર પડ્યો છે ને. આવું આ ત્યાં ઘરાક થઈ જાય મોટા. તો પેલું 13મા ગાથામાં કઈ એ શું રાગ છે એને હજી. જેને આત્મજ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર થયું એને વિતરાગતા નથી તે રાગ છે. એને વ્યવહારે સાધક કહીને એનું જ્ઞાન કરાયું છે. विशेष कैसे पूर्ण शाश्वत उसका स्व अपना सम प्रत्यक्ष वेदन वो स्व के ज्ञान है. और उसमें रमणता आनंद स्वरूप भगवान सूक्ष्म बात है प्रभु. उसमें लीनता रमणता वो चारित्र है. पर वो तीन जो है तो निश्चय निर्विकल्प तीनों, पर तीन भेद है ये पर्याय नहीं से कहने में आया है. समझ में वो विकल्प वाली या नहीं, वो अभी आई गया समझ में आया. ये कल कहा था ना 442 242 गाथा है प्रवचनसार. उसमें ऐसा कहा है श्लोक में कि पर्याय नहीं से जो तीन दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय ये तीन पर्याय नहीं से कहने में आया है. 242 का था प्रवचन सार में है. और निश्चय से तो आत्मा अभेद एकाग्र वो निश्चय है. समझ में आया गाथा प्रवचन सार. संयत्व अथवा सामान्य रूप मोक्ष मार्ग वेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है. ऐसे पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है. 242 सूक्ष्म है भाई. समझ में आया. बताओ छे नहीं है. वो तत्वार सूत्र में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो पर्याय नहीं से कथन है. यहाँ से पर्याय न शास्त्र है. यहाँ ये कहा संस्कृत है वेदात्मक पर्याय प्रधानम व्यवहार नयनम एकाग्र मोक्ष मार्ग में अभेदात्मक द्रव्यम क्या कहते हैं कि अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध शाश्वत वस्तु शाश्वत है न है आज
आदि अंत मध्य रहित, उसकी दृष्टि निर्विकल्प सम्यक दर्शन और निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान और अंतर में रमणता, वो तीन भेद पर्याय नहीं थे, व्यवहार नहीं थे कहने में आया है। आया दूसरा नहीं है, संस्कृत है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भेदात्मक पर्याय प्रधान है, व्यवहार नहीं है ना। अवमान भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य पूर्ण आनंद घन, पर्याय ना भेद बिना की चीज, उसकी अंतर में दृष्टि ज्ञान में रमणता, वितरागी पर्याय, तो पर्याय नहीं से उसको व्यवहार नहीं कहने में आया है। અને ભગવાન આત્મા પીછે અને એકાગ્ર મોક્ષ માર્ગ ની તે અભેદાત્મક દ્રવ્ય પ્રધાન એનું નિશ્ચય નહીં, એનો મુક્ત એકાગ્ર મોક્ષ માર્ગ દ્રવ્યમાં એકાગ્ર ભેદ નહીં, એથી અભેદાત્મકત્વા દ્રવ્ય પ્રધાન એનો નિશ્ચય નહીં એનો। અને विश्वस्वपी भेदाभेदात्मक उभय निमित्त प्रमाण है। तीन बहुत क्या कहा कि भगवान आत्मा शरीर वाणी से भिन्न है, जुदा राग से भिन्न है, पर यहाँ तो एक समय की पर्याय में ये पर्याय से भी द्रव्य भिन्न है। समझ में आया? तो ये द्रव्य जो है उसमें एकाग्रता भेद बिना नहीं, वो निश्चय प्रदान द्रव्य प्रदान से निश्चय धर्म निश्चय मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य वस्तु जो है उसकी पर्याय प्रदान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी सत्य निश्चय हो, तो पर्याय है माटी पर्याय प्रदान है, व्यवहार नहीं उसको मोक्ष मार्ग का। समझ में आया? सिवा पंडित जी से नोड़ी गाथा भी आई गई है એટલે કે લોકો વ્યાખ્યાન બંધ કરો પછી વડાલ છે સાજે ભાઈ કહી ગયો હતા મને શ્રીતનજી। हाँ हाँ हाँ, भगवान मार्ग तो ऐसा है भाई, समझ में आया? जब आ तो संस्कृत है અને पीछे देखो एम पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से प्रज्ञापन है, ये तो व्यवहार नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय पर्याय है ये भी पर्याय प्रधान से व्यवहार नहीं से कथन है। और अभेदात्मक होने से हुआ थी एकाग्रता मोक्ष मार्ग द्रव्य प्रधान निश्चय नहीं से प्रज्ञापन है। पहले तो समझना लोगों ने। और सब पदार्थ का भेदात्मक होने से बन्नी सम्यक दर्शन चारित्र में एकाग्रता मोक्ष मार्ग ये प्रमाण है, उसमें ही नहीं। समझ में आया? तीन बोल लिया 242 कि अपना स्वरूप जो पूर्ण आनंद कंद राग रहित ऐसा स्वभाव की एकाग्रता भेद नहीं है, ये एकाग्रता द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं मोक्ष मार्ग है। और वो पर्याय जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी पर्याय सत्य मोक्ष का मार्ग, ये पर्याय प्रधान है, व्यवहार नहीं का मोक्ष मार्ग है। और दो एक साथ में जानने में आता है, ये प्रमाण है। समझ में आया? टिकाड़ी एकाग्रता उसका भी ज्ञान करना निश्चय का, અને पर्याय का वितरागी पर्याय का ज्ञान करना ही व्यवहार का। दो का ज्ञान ही पण वो निश्चय रख कर एकाग्रता जो है द्रव्य एकाग्रता है वो निश्चय तो रखकर पर्याय का व्यवहार का मिलान किया, पण वो रखकर मिलान किया
तो दो को प्रमाण कहने में आया है। समझ में आया? प्रमाण में वो निश्चय तो रखा है अंदर, साथ में मिलान किया पर्याय का, वो कारण दो को प्रमाण कहने आया है। नहीं समझा तो फिर कहिए ऐसी तो विशेष प्रमाण में भी निषेध करना है। पहले ऐसा कहा कि जो चैतन वस्तु अखंड अनंत गुण नो अनंत शक्ति नो एक रूप द्रव्य, गुण में गुणी का भेद भी जिसमें नहीं, ऐसा एक रूप जो वस्तु है उसमें एकाग्रता करना, ये द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य में पर्याय लेना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वितरागी पर्याय, आनंद की पर्याय, अनाकुल शांति का वेदन वाली तीनों पर्याय, वो पर्याय प्रदान से व्यवहार नहीं, क्यों उसको मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं से कहा। ऐसा कहा पंडित जी। अने दो को साथ में ज्ञान करना, पर वो पहले वो रखकर वस्तु जी अखंड में एकाग्रता का निश्चय का लक्ष में रखकर पर्याय से व्यवहार नहीं जो कहा, उसको मिलान किया तो उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। संजय भाई घणी बात है भाई। हाँ 16वीं गाथा में तो ऐसा कहा संस्कृत कलश में समय साथ कि पर्याय से जो उसको दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय जो है वो मेचक है। पर्याय सच्ची पर्याय हो, त्रिकाली भगवान आत्मा वस्तु, उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता पर्याय निर्मल वितरागी, उसको क्या मेचक कहा है। मेचक नाम व्यवहार है, अने त्रिकाली अभेद अखंड अनुभव ये निश्चय है, ये अमेचक है। दो बात राजमल टीका में उसका ऐसा अर्थ लिया है कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन अखंड, उसकी पर्याय में से लेना के सम्यक संज्ञान चारित्र, ये पर्याय निर्मल से लेना, वो भी मेचक नाम मलिन है, विकल्प नहीं। आप पर्याय तीन भेद में व्यवहार ये मलिन है। टीका में ये नहीं द्रव्य मलिन है, मेचकार मलिन क्या पंडित जी? गजब बात है। किसकी अपेक्षा मलिन है? सामान्यपणे अर्थग्राहक शक्ति का नाम दर्शन, विशेषपणे अर्थग्राहक का शक्ति का नाम ज्ञान, और शुद्ध तत्व शक्ति का नाम चारित्र। ऐसे शक्ति भेद करता एक जीव 3 प्रकार होता है, ऐसे मलिन कहने का व्यवहार है। નવલચંદાએ આ થોડો ઝીણી વાર્તા હતી, પંડિતજી છે કે મૂકી દો विषय सादा है। मलिन कहने के बाद और अचेतन द्रव्य निर्मल है, किसकी अपेक्षा से निर्मल? स्वयं एकत्व द्रव्य का सहज निर्भेदपना होने से ऐसा निश्चय नहीं कहने में आता है। समझ में आया? अने उसमें तो बड़ी लिया है वो स्वात्मानुभव मनन है, धर्मदास शुल्क का स्वात्मानुभव मनन से ही नहीं है।
स्वात्मानुभव मनन, वो सम्यक ज्ञान दीपिका में जो स्त्री का प्रश्न उठा है ना सब, वो सम्यक ज्ञान दीपिका धर्मदास शुल्क का है। दिगंबर धर्मदास शुल्क ज्ञानी की वाणी है, सोनगढ़ की नहीं, सोनगढ़ का पुस्तक ही नहीं है। लोगों ने खबर नहीं, कहीं तो नहीं है। ये सम्यक ज्ञान दीपिका में लिया है, ऐसा ही प्रश्न स्वात्म अनुभव मनन में लिया है, वो ही दृष्टान लिया है। हाँ है नहीं तो बताया था ना, दोपहर को बताया था कल। आए तो तीसरी बात कहना है, उसमें तो ऐसा लिया है कि जो पर्याय भेद से हैं ये अशुद्ध है और द्रव्य से हैं जो है शुद्ध है। असुर में था। क्या किया फिर पूजन जी? आ वस्तु जी विनायक स्वरूप चैतन्य पवित्र पिंड प्रभु, उसका दर्शन ज्ञान ने चाहिए तो निर्मल पर्याय, પણ पर्याय है ने तो त्या 16 श्लोक कलश में मेचक कहा, व्यवहार कहा, कलश टीकाकारे मलिन कहा, स्वात्मानुभव मनन वाले अशुद्ध कहा। समझ में आया? હવે આમ ફેરવી નાખું તો શુદ્ધ દ્રવ્યની એકાગ્રતા वो अमेचक है, शुद्ध द्रव्यनी एकाग्रता वो निश्चय है और शुद्ध द्रव्यनी एकाग्रता वो शुद्ध है। आम जયારે तीन मलिन, अशुद्ध અને व्यवहार तो आई निर्मल, शुद्ध, निश्चय। समझ में आया? बात तो ऐसी है भाई। भगवान श्रीमुखे निकली दीव धनी तो ऐसी है। पीछे निश्चय है क्या व्यवहार कैसा होता है, ये बात सब में क्या समझ चलती है। समझ में आया? तो रात्रि बराबर આવવાનું છે। આજ હમણાં પછી હમણાં ફેરી નાખ્યો, અહીંયા સુધી સ્વાધ્યાય કરી હતી ભાઈ। શ્રીચંદ जी आया કે पंडित जी 2 दिन रहने। भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी चीज तो एक समय में शुद्ध कंद प्रभु, आनंद कंद है। जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद नहीं शकरिया, शकरकंद कहते हैं ना। ये शकरकंद जो है ये ऊपरी लाल छाल है, लाल छाल छिलका, इसको छोड़कर देखो तो शकरकंद है। शकरकंद का अर्थ साकर की मिठास का पिंड, शक्कर कहते हैं ना, शकरिया शक्कर। धरतन जी विष्णु लोग को खाते हैं ना शिवरात्रि को, ये लाल छाल एक जरीब है, बाकी तो शक्कर कंद है सारा। शक्कर नाम साकर, साकर की मिठास का पिंड है सारा। उसको खरेखर शकरकंद कहने में आता है, साकर कंद। ऐसे आत्मा जो पुण्य ने पाप का सुबह सुबह विकल्प जो उठते हैं वो तो ऊपर लाल छाल जैसी चीज है। दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि ना विकल्प उठते हैं, शुभ राग लाल छाल है। ये आत्मा नहीं, ये शकरकंद नहीं, हम ये आत्मा नहीं। ये बोली लाल छाल शकरकंद नहीं, एमा पुण्य परिणाम आत्मा नहीं। ये शुभ ने अशुभ विकल्प की छिलका है, उसका अलग छोड़कर अंतर देखो तो ये एक किला आनंद का कंद है। भगवान एक किला एक शकरकंद की बात वैसे उसको देखाई है।
એ દેખાય છે એ દેખનારો કોણ છે એને દેખતો નથી. દેખાય છે તો આમ દેખાય છે આ, પણ જે દેખે છે ये देखनारो देखे अपने को, ये क्या है? देखने वाला अपने को देखे तो आनंद मूर्ति है ये. समझ में आया? जानने वाले को जानने में आता है तो ये आनंद कंद आत्मा है. सर्वज्ञ परमेश्वर ना वाणी में दिव्य धनी में गणधर ने संतों ने इंद्रों ने बीच में ये बात आती थी. ये बात है. अरे भगवान, आए कहते हैं फिर यह मोक्ष में वो तो टीका लिया. अरे उसमें कलश है, प्रवर्तन सार का कलश है. ये प्रमाणे प्रतिपादन का आशय के वश एक होवा छता पर अनेक छतो होने से देखो भगवान आत्मा एक रूप होवा छते भाषा में हिंदी होने पर भी अर्थात अभेद प्रदान निश्चय नहीं है. एकाग्रता होवा छता पण कहनारना अभिप्राय अनुसार भेद प्रदान व्यवहार नहीं थी. अनेक का अर्थ दर्शन ज्ञान चारि रूप थतो होने से एक रूप वस्तु है उसको तीन प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक निश्चय मोक्ष मार्ग, तीन प्रकार को कहना ये व्यवहार है. ये भेद प्रधान व्यवहार नहीं से कथन है. समझ में आया? और एकता के एक लक्षण नीचे और फिर द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से मात्र एकाग्रता एक ज मोक्ष मार्ग लक्षण है. एकाग्रता एक ज पर्याय प्रदान व्यवहार नहीं से दर्शन ज्ञान त्रिक मोक्ष मार्ग का लक्षण है. समझ में आया? तो एकाग्रता त्रिलक्षणपणा से અને તેમજ ત્રિલક્ષણપણાને પામેલો મોક્ષનો માર્ગ તેને લોક દ્રષ્ટાજ્ઞાતામાં પ્રણતિ બાંધીને અચલપણે અવલંબો જેથી ઉલસતી ચેતનાના અતુલ વિકાસ કો અલ્પકાળ में પામે. ભગવાન આત્મા એ 85 કઈ બાજુ લીધું નહીં. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ પહેલો આવે છે એ એટલે નિશ્ચય સહિત લખ્યું છે. અનાદિ વાસના રહી એ 85 172 ગાથામાં. દિગંબર સંતોની શૈલી તો અલૌકિક છે. પૂર્વા પર વિરોધ રહિત है. समझने में जरूर बहुत प्रयत्न चाहिए, अंतर का प्रयत्न से आप इतना शास्त्र ज्ञान से भी आप पता नहीं लगता. समझ में आया? कलश है. इति एवं प्रतिपतम आशय वशात एकोपी अनेकी भवम स्त्री लक्षणम एकता उपगतो मार्गो अपवर्ग दृष्ट ज्ञात निबद्धम वृत्तिम अचलम लोक तस्मात् मंदता मास्करम अचिरात विकास अतुलम एन उलसती अचिति. भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध द्रव्य अखंड आनंद कंद की दृष्टि एकाग्रता से वो निश्चय है. और वो पर्याय तीन भेद है. निश्चय मोक्ष मार्गों जो तत्वार्थ सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग, ये पर्याय प्रधान कथन है. यही तीन से पण जानो और अंतर में एकाग्र हो. समझ में आया? तो अल्पकाल में तेरे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी.
अल्पकाल में तो मुक्ति होगी, संसार का दाह से रहित शांति का समुद्र मुझसे निकलेगा। समझ में आया? तो स्वात्मानुमान धनराज पुलक बहुत अध्यात्म ज्ञानी, बहुत यानी अध्यात्म दृष्टि में खूब दृष्टांत दिया है, खूब दृष्टांत। सम्यक ज्ञान लिपि समय तो दृष्टांत तो दृष्टांत और स्वात्मानुमान मनन में बहुत मनन किया है। थोड़ा वेदांत का गाथा कहते हैं कि अपनी लगती है ये थी, यहाँ में छापने का ना किया था, छापों के बाद समझना लिपि का। हाँ नहीं तो उसमें भी ऐसी बात आई बहुत सूक्ष्म। पीछे शब्दावली है, उसमें तो सारा शास्त्र का भिन्न भिन्न शास्त्र, सब बहुत शास्त्र देखा, सबका वाक्यावली क्या है। तो उसमें एक लिखा कि भगवान आत्मा एक रूप है, ये शुद्ध है, અને तीन पर्याय से कहता ये अशुद्ध है। व्यवहार सुनो कि जो निश्चय वस्तु है अखंड, ऐसी एकाग्रता वो निश्चय, અને पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्मल है, ये सद्भूत व्यवहार है। पर्याय है सद्भूत व्यवहार है, और पीछे जो विकल्प व्यवहार का आता है असद्भूत व्यवहार है। हाँ 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 हाँ, आ બધા भाषा है। ये तो विकल्प है, आता है, होता है, तो उसको जानना। 12वीं गाथा में कहा ने तदात्वे जाने प्रयोजनवान है, संस्कृत में 12वीं गाथा। तदात्वे ते समय भगवान पूर्ण चैतन्य घन, उसका अनुभव दृष्टि वो तो सम्यक निश्चय है। ये तो भूतार के आश्रय होता है, त्रिकाल भूतार शाश्वत वस्तु के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। पीछे पर्याय में जितनी हजी शुद्धता अल्प रही, अशुद्धता थोड़ी हुई, उसको जानना ये तदात्म ते समय जानना ये प्रयोजनवान है। क्योंकि समय समय में शुद्धता बढ़ती है और शुद्धता घटती है। सम्यक दृष्टि को स्वभाव के आश्रय से समय समय में शुद्धता बढ़ती है, शुद्धता घटती है। तो ते समय समय में जी समय शुद्धता बढ़ी અને अशुद्धता घटी, ये समय उसका ज्ञान करना, ये समय ज्ञान करना बस। हाँ हाँ को समझाय છે કાંઈ? આ તો હવે 14મી ગાથા આવે એટલે એનો મથાળું બંધાય। આવી વાત છે ભાઈ। हाँ हाँ हाँ। હવે कहते हैं 13वीं गाथा में कहा निश्चय रत्नंतर की बात। अपना 13वीं में ऐसा है, देखो फिर जो 13वीं गाथा जो पेछई जाणी अनुचरी अपी अपो जूझी, दर्शनो नाणु चरी तो जीवो मोक्षपंग कारण सूझी। ये खरेखर तो ત્યાં भी ऐसा लिया, जो अपने से आपको देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही दर्शन ज्ञान से परिणित हुआ। ये तीनों में परिणित हुआ जीव मोक्ष का कारण है। पर्याय को व्यवहार करके उसका परिणित हुआ जीव, ये मोक्ष का कारण है। हाँ 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 हाँ। फिर में ऐसा कहा तो उसका सम्यक आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु की दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको
ये छठा गुण उत्थान की बात है। हमें यहाँ छठा गुण उत्थान में व्यवहार कैसा होता है ये बात चलती है। समझ में आया? आगे भेद रत्न व्यवहार परंपरा मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। 14 छठे निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र है पण पूर्ण नहीं, तो तेज त्या व्यवहार रत्न तरीका भेद विकल्प आता है। ये परंपरा का न सिद्धू नहीं, उसको छोड़कर मोक्ष होगा अथवा उसको छोड़कर सप्तमा गुणस्थान होगा। समझ में आया? अर्थ व्यवहार नहीं, जो दर्शन ज्ञान चार तीनों को कहता है उस व्यवहार तंत्र को तुम जान। छह परि जाना ही, जिससे कि उत्कृष्ट अर्थान पवित्र होवे। छठे भूमिका में निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र की अल्पता है, तो त्या विकल्प व्यवहार रत्न का विकल्प आता है। वो छोड़कर तेरे उत्कृष्ट सप्तम गुणस्थान हो जाता है। उत्कृष्ट ही समझ में आया? 12वीं का समझ लू છે ને જૈસન આચાર્ય 12મી માં નિર્વિકલ્પતા લીધી છે। અપરમ में ठेदा भावे शुद्धो शुद्धादिष्टो नाय परम भावना निर्विकल्पता લીધી છે। અમૃતચંદ્ર આચાર્ય 13મું ગુણસ્થાન લીધું છે। જૈસન આચાર્ય નિર્વિકલ્પતા લીધી છે। ये निर्विकल्पता है, ये परम भाव में है, અને વિકલ્પમાં આયા એ अपरम भाव में है। समझ में आया? ये आई बात है व्यवहार की, जिससे कि उत्कृष्ट अर्थान पवित्र हो भावार्थ। ये जीव तो तत्वार्थ का सिद्धांत व्यवहार की बात है, असद्भुत व्यवहार की बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय है, ये भूमिका में व्यवहार आता है। तो ये तत्वार्थ सिद्धांत है, वो शास्त्र का ज्ञान। देखो शास्त्र का ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान था। पहले आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र था 13 में। तत्वार्थ का सिद्धांत, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग, पापना परिणाम का त्याग, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञानचारी व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान है न। जान है न, पाठ में है ना परियाना ही, पाठ में परियाना ही जान है न। जब लग वितरागता पूर्ण न हो तब लग ऐसा विकल्प आता है। देवगुरु शास्त्र की भक्ति, श्रद्धा, पूजा, भक्ति, यात्रा ऐसा भाव आता है, पर वो भाव राग है। समझ में आया? तो वो कहते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान। क्यों? कि निश्चय रत्न मोक्ष मार्ग के साधक है। छठा गुणस्थान का विकल्प है, ये सातवा का साधक है। ये विकल्प को साधक कहा निश्चय से, तो छठा गुणस्थान की निर्मल जो पर्याय है वो सातवा के निर्मल पर्याय का कारण है। ये साधक तो ये है, पर व्यवहार का साधक आ कहा। जैसे मोक्ष मार्ग में कहा टोडर मंडल कि अपना शुद्ध स्वरूप का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो तो निश्चय, अने साथ में जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प उठते हैं उसको आरोप से व्यवहार संकेत कहने में आता है। व्यवहार ये निरूपण कथन की शैली में दो प्रकार है। वस्तु तो एक प्रकार है, पर कथन निरूपण ये आई शब्द आया, बोल ये शब्द है, बोल ये शब्द है ना।
14 बोल रहा हूं कथन। ये कथन में व्यवहार का जो आता है ये बात यहां हम कहते हैं। या ऐसा कहा कि व्यवहार आता है उसको जान। अरे योग सार में भी कहा, योग सार ने निश्चयની વાત કરી પછી કઈ છદ્રવાદીને જાણ, પ્રયત્નથી જાણ એમ કહેવાય। पंडित जी योग सार है ना, योगेंद्र देव का, उसकी गाथा है, उसमें ये गाथा है षड्द्रव्य की, षड्द्रव्य प्रयत्न से जान पण है प्रयत्न કરીને જાણ। ये व्यवहार है, विकल्प आता है। पूर्ण वितराग न हो तो व्यवहार बीच में आया बिना रहे, पर वो व्यवहार से नीचे होता है। ये कथन नीचे व्यवहार का है, अभूतार्थ नहीं का कथन है। समझ में आया? शू करे व्यवहार मोक्ष जान, क्योंकि निश्चय रत्न शुभ मोक्ष मार्ग के साधक है व्यवहार। इत्या कहा तोरण मन निश्चयाभास में, व्यवहार भास में, कि अपना स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य है उसका सम्यक दर्शन वो तो यथार्थ है, पर साथ में जो व्यवहार दर्शन का विकल्प उठते हैं देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है तो राग, और राग में आरोप करके निश्चय का आरोप किया कि व्यवहार संकित है। व्यवहार संकित है नहीं, ये तो राग है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावर्त का परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ये तो राग विकल्प राग है। छता या निश्चय मोक्ष मार्ग जब है तो उस समय उसका आरोप करके है तो बंध का कारण, पर आरोप से निमित्त का ज्ञान कराने को उसको व्यवहार कहा है। समझ में आया? अने ऐसा निश्चय व्यवहार का सर्वोत्तर लक्षण ऐसा जानना उसमें है। ऐसा निश्चय व्यवहार का लक्षण सर्वत्र जानना तो आ साधक में ही आया। समझ में आया? यह साधक व्यवहार का लक्षण है, ये आरोपित लक्षण है। समझ में आया? टोडरमल ने तो बहुत काम किया है। टोडरमल बनारसी दास बहुत शास्त्र का सामान्य बात में संक्षेप में था, उसका स्पष्टीकरण, विशेष प्रशिक्षण किया है। इसकी घर की बात को तो नहीं है। तो आग्रह छोड़कर मध्यस्थ हैं, विचार करें तो उसको ये बात बेधते हैं। તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 14મી ગાથાનો ઘણો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે કર્યો છે। આજે ઘણા શાસ્ત્રની વાત આવી, એ બધી વાતને ફરીથી વાંચવા માટે, વિચારવા માટે મારી અનુમોદના છે।